میرے گاؤں والوں، میرے پیاروں، ہم سب ملاقات بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، لیکن میں اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا کام، یہ مہینہ بہت مبارک ہے. کون سا مہینہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی. شعبان. آنے والا مہینہ رمضان، اور جو مہینہ گزر گیا وہ رجب. یہ 3 مہینے بہت مبارک ہے. ارے بولو یہ 3 مہینے بہت. ہمارے نبی نے 3 مہینے کے لیے الگ دعا کی، الگ دعا کی. ہمارے نبی نے کیا دعا کی؟ جو مہینہ گزر گیا نا رجب، اللہ کہتے اتنا مبارک مہینہ ہے. ہمارے نبی کہتے اتنا مبارک مہینہ ہے، جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے. یہ مہینے کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے فرمایا یہ شعبان مہینے میں جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے. اور آنے والا مہینہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے، اللہ رحمت کا دریا بہائے گا. بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن آئیں گے، اللہ مغفرت کا پروانہ تقسیم کرے گا. بولو سبحان اللہ. اور تیسرے 10 دن آئیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور یہ 3 مہینے کو ہمارے نبی نے الگ سے، ہاں آپ لوگ بھی یہ مانگیں گے، میں بھی مانگوں گا. ہمارے نبی نے کون سی دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ لوگ آمین کہہ دو، آپ کو بھی ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ جو ہمارے یہاں پہ مہینہ گزر گیا رجب، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما. بولو آمین. اللہ جو مہینہ شعبان میں ہے، اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ آنے والا رمضان مہینہ میں اطمینان سے پہنچا دے، اور جو تیرے وعدے ہیں وہ سب وعدے ہمیں عطا فرما دے. آمین. میرے دوستو، پہلی بات پکی ہوئی تو میں آگے چلوں آگے؟ نہیں، پکی نہیں ہوئی. ایک بار پورے یقین کے ساتھ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ایک دم یقین. سب سے بڑا کون؟ اللہ. اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. ایک بار ساتھ میں بولو نا، اللہ ایک. بولو اللہ. آواز سے بولو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ ایک. پورا مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ ایک ہے. آگے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے، نہ اللہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ. ارے پہاڑوں کو زمین پہ لانے والا کون؟ اللہ. زمین میں دریاؤں کو بہانے والا کون؟ اللہ. آسمان پر آفتاب اور مہتاب اور ستارے لانے والا کون؟ اللہ. اللہ کی طاقت کے آگے بولو نہ کوئی طاقت. یقین بن گیا؟ ہاں بولو نا. کرنے دھرنے والا کون؟ ہمیں لقمہ کون کھلاتا ہے؟ ہمیں یہ کپڑا کون دیتا ہے؟ اللہ. ہمیں گھر کس نے دیا؟ بیوی بچے کس نے دیے؟ یہ ہماری جو سانس چلتی ہے کون کرنے والا؟ جب سب اللہ کرتا تو پھر اللہ کے سامنے ہوشیاری کا کو کرتے ہو؟ بولو نا، سب کرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ کون ڈرتا ہے؟ ڈرتے تو ہاتھ اوپر کرو نا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ڈرتے نا اللہ سے؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی بھائی. ڈرتے اللہ سے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، بولو اگر اللہ سے، تو میں بھی آج آپ کو وعدہ کرتا ہوں. میں نہیں وعدہ کرتا، قرآن میں 4 پارے میں لکھا ہے، اللہ نے فرمائے میرے بندو، اللہ فرماتے ہو میری بندی ہو، میرے سے ڈرو، میرے سے ڈرو. اب ہم نے تو ہاتھ اوپر کر کے کہا اللہ ہم تجھ سے، پھر آواز نہیں آ رہی ہے.
اللہ ہم تجھ سے. تو اللہ نے کہا اگر تو ڈرتا ہے, اگر تو اپنی بات میں سچا ہے, اگر میری بہن اور میری ماں اور میری بیٹی اپنی بات میں سچے ہیں کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, تو اللہ بھی وعدہ کرتے ہیں, یاد رکھنا موت کے وقت تو چاہے گا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. سبحان اللہ. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, صرف کلمہ نصیب نہیں کروں گا, بغیر حساب کتاب تیرے کو جنت میں پہنچا دوں گا. سبحان اللہ. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ میری انگلیاں دیکھو, قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں نے بولو نا پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا میرا بندہ, ایمان والی میری بندی, اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. اگر ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے گئے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے گئے, تو اللہ فرماتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے جب موت کا وقت آئے گا تجھے کلمہ نصیب کروں گا, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچاؤں گا. تو ایک مرتبہ پھر بولو کون کون ڈرتا اللہ سے؟ جنت ملے گی, جنت. ہم ڈرتے ہیں. اور کیا ملے گا؟ موت کے وقت کلمہ. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو نا اللہ سے ڈرتے ہیں. بولو اللہ سے ڈرتے ڈرتے ہیں. ارے ہاں بولو یا نہ بولو, ڈرتے ہیں نا, کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی ہم بولے کہ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ڈرتے ہیں نا اللہ سے, تو پھر موبائل پہ گندے کام کائے کو کرتے ہو؟ اس وقت اللہ کہاں جاتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ نا, اللہ سو جاتے رات کو؟ نہیں, ہاں یا نہ؟ ہمارا یقین کیا بولتا ہے, اللہ سو جاتے؟ تو پھر رات کو 1 بجے موبائل پہ جو گندا کرتے ہو تو اللہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے جوان جو یہاں کھڑے ہیں وہاں بیٹھے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ موبائل پر اتنا گندا دیکھتا ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں قبرستان کی زمین ہے, ہمارا جوان اتنا گندا, اتنا نالائق, اتنا نکما, اتنا بے وفا, اتنا ماں اور باپ کو ستانے والا کہ وہ جب موبائل پہ اتنا گندا دیکھتا ہے, عورت کو دیکھتا ہے آدھا کپڑا پہنی ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے, اور وہ دیکھتا ہے. صحیح کہتا ہوں, اگر اچانک اس کی ماں آ جاوے نا اور ماں آ کے اس کا موبائل چھین لے نا, اور موبائل میں ماں دیکھے نا کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے, تو ماں بھی کہے گی کاش پہلے ہی مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا, یا پیدا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا ہے. کیا کرتے موبائل پہ زینا. رات کو 1 بجے وہ بیچارہ ابا اور اماں سمجھتے ہو میرا بیٹا تو وہ روم میں گیا, سو گیا, دروازہ بند کیا, سو گیا. کائے کا سو گیا؟ وہ موبائل میں گندے کاموں میں کھو گیا. موبائل میں زینا ہوتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں غیبت ہوتی ہے, موبائل میں چگلی ہوتی ہے, موبائل میں گندے سے گندا ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے, موبائل پر ماں بہنوں کی گالیاں سنی جاتی ہے. موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض ہے, ہمارا ابا ناراض ہے. آپ کو معلوم ہے پورا مجمع سنو, جس کی ماں اس سے ناراض ہوئے نا, ابھی بڑی رات گئی, کون سی رات گئی بولو نا, کون سی رات گئی؟ شب برات گئی نا. رات عبادت کیے ہوں گے نا, ارے ہاں بولو نا, کیے ہوں گے نا, جاگے ہوں گے نا, کھڑے بولو نا, جاگے ہوں گے نا. معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاگ لے. ہمارے نبی کہتے جاگ, عبادت کر. ہمارے نبی کہتے ہیں شب برات میں جاگ اور کیا کر؟ عبادت کر. دوسرے دن روزہ بھی رکھ. بہت سارے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا, بولو رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ. حضرت علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا, میرے نبی نے فرمایا جب شب برات یعنی 15ویں شعبان والی رات آئے, ہمارے نبی کہتے جاگو, عبادت کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو. لیکن ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی پوری رات جاگے, پوری رات قرآن پڑھے, پوری رات نفل پڑھے, پوری رات اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے, بولو اگر اس کی
माँ या इसका बाप, इससे ना, ये पूरी रात इबादत करे, दूसरे दिन रोजा रखे। हमारे नबी फरमाते हैं इसने पूरी रात इबादत की है, सिर्फ ये रात नहीं, आने वाले रमजान के सब रोजे रख ले, आने वाले रमजान की सब रातें जागे, शबे बारात में भी जागे, शबे कदर में भी जागे, ईद की रात में भी जागे। लेकिन अगर इसकी माँ और इसके अब्बा इससे नाराज है, हमारे नबी ने फरमाया यतकल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन वला तजरिल कलिमतु अला लिसानी। हमारे नबी कहते हैं अगर इसकी माँ और इसके बाप इससे नाराज है, मौत के वक्त तड़पेगा तड़पेगा तड़पेगा, लाख कोशिश करेगा मगर मैं उसको कलमा नसीब नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज अगर मेरी बात पर आते हो तो आ जाओ पहली बात पर, एक डरना। और किससे डरना? कौन कौन डरेगा आज से? तो क्या करेंगे? मोबाइल छोड़ देंगे? ना ना, छोड़ने का नहीं। मोबाइल छोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, फोड़ना भी नहीं। अरे बोलो, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, मोबाइल तोड़ेंगे नहीं, मोबाइल फोड़ेंगे नहीं। और मोबाइल हलाल है। ए मेरे प्यारो, ये हमारा फेसबुक होवे कि यूट्यूब होवे, ये हलाल है, हलाल है। अगर मोबाइल हराम होता, हमारे उलमा के पास ना होता, हमारे दावत और तबलीग वालों के पास ना होता, हमारे औलिया के पास ना होता, हमारे खानका वालों के पास ना होता, सीधे साधे लोगों के पास मोबाइल ना होता। अगर हराम होता तो ना होता, लेकिन सबके पास मोबाइल हलाल है, लेकिन फॉर्मेट हमारा हराम है। मोबाइल हलाल है, लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते वो, वरना पूरा मजमा बोलेगा हमारे मोबाइल में कुरान का सबक आता कि नहीं आता, हदीस का सबक आता है, नज़म आती कि नहीं आती, नात आती कि नहीं आती, कुरान पाक को सही कैसे पढ़ने का बोलो आता कि नहीं आता। और चलो ये छोड़ो, मेडिकल आता कि नहीं आता, साइंस आता है, बायोलॉजी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, लॉजिक आता है, केमिस्ट्री आता है। मतलब है कि हमारा मोबाइल एजुकेशन है, नॉलेज है, दीन और दुनिया की तालीम है। ये मोबाइल जिससे आप गलत काम करते हो, इससे सही काम करो। वही मोबाइल जो हमको जहन्नम में लेके जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। तो कौन कौन ये गाँव में तैयार है? मोबाइल रखेंगे मगर फॉर्मेट सही करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके गौर। ये किसकी वजह से करेंगे? आवाज नहीं आ रही, किसकी वजह से करेंगे? और जो अल्लाह से डरेगा, अभी मैंने सुना, जो अल्लाह से डरेगा वो चाहेगा ना चाहेगा, बोलो अल्लाह मौत के वक्त बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, ए मेरी बंदी मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। पूरा मजमा बोले जन्नत देने वाला कौन? तो पहली बात के लिए कौन तैयार है? देखो मैं 3 बातें करूंगा और बात खत्म करूंगा। मेरे को जो टाइम दिया गया उसमें अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले करने धरने वाला कौन? आज से यकीन मजबूत, हर काम करेंगे, लेकिन पहले किससे बात करेंगे? नहीं बोलो पहले किससे बात करेंगे? अरे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, आपने पूरी तैयारी की है, माशाल्लाह आपके पास किताबें हैं, आपके पास कलम है, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी इतना मेहनत करने वाला भी वापस आता और आकर कहता है कि वो पेपर बराबर नहीं गया। बोलो होता कि नहीं होता पेपर बराबर? तो मेरे दोस्तों इरादा कर लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। पहली बात पक्की करे तो मैं दूसरी बात पर आऊं। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ ऊपर कर दो, दोनों हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो, दूसरी बात साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन। बहुत पक्की बात पे आ रहा, शाबान महीना है। बोलो कौन सा महीना? अभी मैं आपको शाबान के बारे में बता रहा था। एक बात और बताऊं, सब मिला के महीने कितने? 12। ये भी नहीं मालूम गांव में? नहीं बोलो ना, कितने महीने? 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं, बोलो 2 महीने ऐसे कि हमारे नबी ने फरमाया एक मेरा है एक अल्लाह का है, एक मेरा है और एक अल्लाह। 12 महीने में 10 महीने को साइड पे रखो, 2 महीने हमारे नबी ने फरमाया ये जो महीना है शाबान, हमारे नबी ने फरमाया ये मेरा महीना है। और
आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। अल्लाह बोलो आने वाला रमजान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, और पूरा मजमा बोले रमजान किसका? अल्लाह का महीना है। चलो अब दूसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, एक साथ में आवाज करके बोलोगे मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे नबी बहुत प्यारे। अरे बोलो ना हमारे नबी। अगर आपकी इजाजत हो तो प्यारे। एक वाकया सुना दूं। नहीं इजाजत है आपकी? आप इत्मीनान से सुनेंगे इंशाअल्लाह? जी। पूरे वकार के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा इंशाअल्लाह। वाकया सुना रहा हूँ, हकीकत में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होगा। वाकया सिर्फ सुनना, मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र, ये मेरी उंगलियां देखो और आप लोग बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी? 7 साल। 7 साल। 7 साल का तो छोटा बच्चा। अरे बोलो 7 साल का तो छोटा बच्चा। अच्छा मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी? पूरा मजमा सुनना। हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हो गई। किस में तकलीफ हो गई? उम्र कितनी? आँखों में तकलीफ। वो हम लोग बोलते हैं आंख आ गई। हम लोग क्या बोलते हैं? आंख आ गई, जिसको आशोब चश्म, उर्दू में और फारसी में इसको क्या कहते हैं? आशोब चश्म। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक लाल लाल हो गई, वो दुखने भी लगे, वो जलने भी लगे, उसमें से पानी के कतरा भी टपकने लगे। हमारे नबी बहुत परेशान। और उम्र कितनी है? बचपन है। और मालूम है हमारे नबी को सरपरस्ती में कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब। उस वक्त हमारे नबी को समझाने वाले और लेके चलने वाले दादा, और दादा का नाम क्या है? अब तो किसी ने दादा को कहा, भाई किसी ने दादा को कहा कि तुम्हारे पोते मोहम्मद, इनकी आंखों में बहुत तकलीफ है, 7 साल की उम्र है, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, और कैसा आंखों में से पानी निकलता है, कैसा कतरा टपकता है। तो दादा ने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मेरे पोते मोहम्मद का कोई इलाज होता? बोलो कोई इलाज होता? तो किसी ने क्या कहा मालूम? यहाँ मक्का, ये मक्का है, यहाँ काबा है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाओगे तो एक इलाका आएगा, उसका नाम है ओकाज। बोलो क्या नाम है? ओकाज। ओकाज बोले वहां जाओ, वहां एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे, बहुत इल्म वाला बूढ़ा मिलेगा। छोटी सी झोपड़ी होगी और वो झोपड़ी के अंदर बूढ़ा बैठा होगा, और वो बूढ़ा सिर्फ एक ही काम करता है, अल्लाह अल्लाह। उस जमाने में भी बोलो क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहो बूढ़ा वो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, आंखों के बारे में उसको बहुत महारत है। आप अपने पोते को लेकर वहां चले जाओ, वो जो भी दवा देगा तो आपके पोते अच्छे हो जाएंगे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? पूरा मजमा बोला कितनी उम्र थी? 7 साल। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास सवारी भी नहीं। कहाँ कैसा लेकर गए मालूम? कभी अपने पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर बिठा देवे, कभी रास्ते में चलावे, फिर कंधों पे बिठावे, फिर रास्ते में चला। वो गर्मी, वो चिलचिलाती गर्मी, वो आसमान भी गर्म, वो जमीन भी गर्म। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब चले 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 बहुत दूर, पहाड़ों को पार करके ओकाज पहुंच गए। बोलो कहाँ पहुंच गए? ओकाज। और जो पता बताया था ना, वहां झोपड़ी भी है, और झोपड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो बूढ़े मियाँ बैठे। क्या करते? दादा अब्दुल मुत्तलिब जब वहाँ पहुँचे ना, तो वो बूढ़े मियाँ की जो झोपड़ी थी ना, वो झोपड़ी की थोड़ी सी खिड़की खुली थी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खिड़की में से देखा और कहा, ओ बूढ़े मियाँ को कहा, ओ बुजुर्ग आदमी जरा बाहर आ जाओ, पोते को लेकर आया हूँ, मेरे पोते को लेकर आया हूँ। मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, आंखों में सूजन भी है, आंखों में दुखन भी है, आंखों में जलन भी है। मेरे पोते को लेकर आया हूँ और सुना कि आपके पास आंखों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जरा मेरे पोते का इलाज कर लो ना। बात समझ में आ रही ना आपको? वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, वो ऊपर भी देखने को तैयार नहीं, वो ऐसा यूं गर्दन झुका के बैठे। अब दादा बार बार, दादा अब्दुल मुत्तलिब बार बार जोर जोर से खिड़की बजावे, ए भाई सुनो, ओ भाई सुनो, जरा बाहर आओ, ओ मेरे पोते का इलाज लेने आया, और फ्री में लेने नहीं आया, मेरे पास खाना पीना सवारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीस लेकर आया हूं। तुम जितनी फीस बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार बाहर आकर मेरे पोते को देखो तो सही। अब बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को
तैयार नहीं, यूं गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का और कल भी और परसों भी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? ये सब सुनना। हमारे नबी की तरफ देखकर कहा क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद? हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे हैं। ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे। भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मालूम? हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आएंगे? वो मन्नत मानी है, मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, न खाएंगे न पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हालांकि उम्र कितनी थी? हमारे नबी ने इतना फरमाया जमीन में जलजला आया। वो जलजला समझते हो? क्या बोलते आप लोग? भूकंप। भूकंप अर्थक्वेक भी बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में जलजला। अच्छा जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आवे भाई, जब जमीन हिलने लगे तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो। आमीन। अल्लाह खूब बरकत देवे। बोलो आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करोगे? भागेंगे कि नहीं? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्ला नाम है ना, अजमतुल्ला। कोई मुफ्ती अजमतुल्ला को कहेगा भागो मत, वो कारी अहमद अली बैठा है। कारी अहमद अली तेल लेने गया, यहाँ जमीन हिलती है ना। तो जलजला ऐसी चीज है कि भारी से भारी आदमी भी क्या करता है? भागता। अब वो झोपड़ी के नीचे जलजला आया। जैसा जलजला आया, वो बूढ़े मियाँ की जब झोपड़ी हिलने लगी, वो खड़े हुए और जोर से दरवाजा पटक के खोला और बाहर आकर कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर ही खड़े, देखा कुछ नहीं हुआ। तो मन्नत तो टूट गई क्योंकि वो खड़े होके बाहर आ गए, बातचीत भी कर ली। तो यूं सर पे हाथ रखकर कहा कुछ नहीं हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहा मेरी कहा तुम्हारी झोपड़ी हिलती थी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जमीन हिलती थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बूढ़े मियाँ बाहर निकले। कहा आए क्यों, आए क्यों? तो वो तो बहुत समझदार थे बूढ़े मियाँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते को लेकर आया हूँ। हो जैसे वो बूढ़े मियाँ ने कहा कहाँ है पोता आपका? तो हमारे नबी वहीं बैठे थे। कहा ये मेरे पोते का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। तो वो बूढ़े मियाँ यूं देखे, देखने के बाद कहा बच्चा यतीम है। बच्चा, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है ये वो बच्चा है जो आगे चलकर नबियों का नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि ये यतीम है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब पहले तो कहना नहीं चाहते थे कि यतीम है, लेकिन जब वो सामने वाले ने कह दिया तो कहा ये यतीम है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं दादा हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, बेशक का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी पूरी फीस लेकर आया हूँ, तुमको मेरे पोते की आंखों का इलाज करना। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना यतीम थे कि नहीं थे? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन ववजदका ضالًا फहदा ववजदका अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा नहीं है, नबियों का नबी बनने वाला और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए?
सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना कि आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना हमको कुछ इतना अच्छा लगता, वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है बोलो? किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो? अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या कहा मालूम? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्र कितनी? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। और वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लुआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? तो लुआब मुबारक, थूक मुबारक। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा भाई, जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूँ। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। और दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे, तो मालूम नहीं क्या लिखते, थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटका
तंबाकू, पान और फूल करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा, यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं बोलो ना, पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक, वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे, यकीनन उन्होंने उहद मैदान देखा होगा। उहद पहाड़, 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था उहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ उहद मैदान में आओ, उहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम हो, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको उहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ, साथ में बोलो आर से, रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? उहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख। हजरत रिफाआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख, वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, उहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा, इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, यानी क्या, थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना, उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते हैं, मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती थी। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा, जब मैं